warm welcome to Divine Word of Education. Today, the topic which we are going to study is tenses. Tenses means काल. आप लोगों ने हिंदी में पढ़ा ही होगा काल, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल. That is all about tenses. So here we start with the topic, next topic, that is tenses. So how many type of tenses are there? You might be familiar with the tenses. There are first the major three type of tenses are present, present tense. Next is your past tense, bhutkal, and the other one is your future tense. Okay. This is also further divided into four parts. इसको भी चार पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. कौन कौन से हैं? हमारी जो प्रेजेंट इंग्लिश है ना, उसमें दो ही तरह के टेंसेस हम लोग ज्यादातर स्टडी करते हैं, प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस. बट अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इंग्लिश फ्यूचर टेंस को कंसिडर नहीं करते. भाई जिसको देखा ही नहीं भविष्य को, वो टेंस कैसा, पर हम उसको इंक्लूड करते हैं करिकुलम में, क्योंकि एनसीईआरटी वालों ने कहा है पढ़ना है तो वही पढ़ना है, 11th में ही पढ़ना है, 12th में भी पढ़ना है. Children, one thing you should remember that tenses is a very important topic regarding your academics, regarding your boards, either 10th or 12th. Okay, and either your competitive exam, कोई भी कंपटीशन आप उठा के देख लीजिए, हर एक में टेंसेस आता है. And grammar is a very important portion regarding every competitive exam. So your concept should be clear on each and every aspect of these tenses. Okay, fine. So now I am starting with the present tense. In सभी को they all are further divided into four types. So first is your present indefinite. Or we call it simple present. Next is your present continuous. Next is your present perfect. And last is your present perfect continuous. तो तैयार हैं आप सब टेंसेस समझने के लिए? So how's the Josh? Please do comment in the comment section. Give a big thumbs up, students. How's the Josh? I want a good spirit. Josh should be high regarding your tenses. Okay? So start. Past tense is past indefinite, or simple past या past simple. Next is your past continuous. Next is your past perfect. Children, please take out your notebooks and pen. Do study grammar with pen and paper. Grammar is just like maths. If your concepts are clear, everything is crystal clear in your mind. And if your concepts are weak, your foundation will be weak. And you will get full marks in grammar. In English, it is a very scoring part of English. In literature, the marks might be deducted on the basis how you are answering the question, answer to the question. But in grammar, examiner is not going to cut any marks if you are done with the concept. Okay, so take out your notebook and pen, note down all what the rules I am going to dictate in that class, please. Past perfect, and next is your past perfect continuous.
So major tenses are present and past tense, future tense, and its subparts are these 4, 4, 4. So 12 tenses are there, and here we are going to study all these 12 tenses. Future, future indefinite, or simple future, we call it. Next is your future continuous. Next is future perfect. And last is your future perfect continuous. Done. So these are, now I will start. What are these all tenses about? So let's start with the first one. Have you all noted down in your notebook? Shall I rub it? Okay. So here first I will discuss about the present tense. Okay, fine. चलिए डिस्कस करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट और सिंपल प्रेजेंट क्या होता है। सबसे पहले तो ये जानिए कि इनका यूसेज कहाँ होता है। Where do we use simple present? So first we will discuss about simple present. एडिट डाल दीजिए अपनी अपनी नोटबुक्स में सिंपल प्रेजेंट। Where it is used. So first it is used in universal truth. Universal truth क्या है? जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ आपको, सॉरी, the sun rises in the east or the sun sets in the west. सबसे पहले आप इनके यूसेज समझ लीजिए कि प्रेजेंट टेंस का सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज कहाँ होता है। सिंपल प्रेजेंट यूसेज, नोट डाउन दीज पॉइंटर्स प्लीज। यूसेज आई विल डिस्कस फ्रॉम बेसिक टिल एडवांस लेवल। टेंसेस बहुत बड़ा टॉपिक है, एक क्लास में कवर नहीं होगा। आई विल बी डिवाइडिंग इनटू मेनी पार्ट्स, ओके? सो डू केयरफुली लिसन ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट। सिंपल प्रेजेंट का यूसेज कहाँ होता है? फर्स्ट इज योर यूनिवर्सल ट्रूथ। दिस इज योर यूनिवर्सल ट्रूथ। व्हाट इज यूनिवर्सल ट्रूथ? वो सच्चाई, सन राइजेस इन द ईस्ट, द सन सेट्स इन द वेस्ट, ओके? सो चिल्ड्रन लुक हियर, व्हाट इज दिस सेट्स? वर्ब के साथ एस और ईएस लगा है, ये अभी मैं बताऊंगी। आई विल टेल इन द स्ट्रक्चर ऑफ द टेंसेस, ओके? Next is your fact. Fact is what? जैसे कोई रूटीन है, जैसे I wake up at 7 a.m. every day. Okay? I wake up at 7 a.m. every day. What is this? This is a routine. जो काम हम रोज कर रहे हैं, एक रूटीन है, डेली फॉलो होती है, ओके? नाउ वेयर वी यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस? वन मोर थिंग, जब प्रोवर्ब कोई हो, प्रोवर्ब मतलब जानते हैं आप, मुहावरे, ओके? जैसे फॉर एग्जाम्पल आई विल राइट अस ऑल इज वेल, ओके? All is well is verb use हो रहा है। और one more I want to write example. This is number 1. This is number 2. I'll write a stitch in time saves 9.
are the usages. Please note it down. Next, newspaper headline या न्यूज हेडलाइन. न्यूज हेडलाइन भी जितनी हमारी होती है वो प्रेजेंट टेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में होती है. जैसे फॉर एग्जांपल आई से द प्राइम मिनिस्टर visits America next week. So proverb is been also used, routine it is used, universal fact it is used, simple present tense and news headline. Next is your commentary. मैच में कमेंट्री होती है सेम. Children, you give me example in the comment section. I will look it. I will see to it. Sorry. कमेंट्री में भी हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज होता है. जैसे रोहित शर्मा. आप लोग सोच रहे होंगे मैंने रोहित शर्मा का नाम क्यों लिखा, विराट कोहली का क्यों लिखा. रोहित शर्मा strikes 6. यहां भी सिंपल प्रेजेंट यूज हो रहा है. This I will explain in the rule. ES S या ES verb के साथ. So in commentary also always simple present tense is used. Next, now we come to the structure. अब इतना तो हमने पढ़ लिया कि कहाँ यूज होता है इनका सिंपल प्रेजेंट टेंस. Now we should come to what actual the structure of simple present tense. नोट कर लिया सबने? यहाँ तक सब क्लियर है? Is everything okay? कोई दिक्कत, कोई परेशानी आप लोगों को समझ आ रहा है सब? अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है. प्लीज स्टूडेंट्स share your queries in the comment section. Okay, I am here children to help you. Next, we come to the what is the structure of simple present tense. What is the structure? Simple present tense. Let's see what's the structures. चलिए बस शुरुआत करते हैं. स्ट्रक्चर देखते हैं. First we come to assertive rule. Assertive rule क्या होता है? What is assertive rule? Assertive or we say positive. कोई भी सेंटेंस पॉजिटिव सेंस में कहा जाए that is your assertive rule. What is assertive rule? Assertive rule का स्ट्रक्चर है. This is all about children. Simple present. I am talking. Okay. Simple present. I am talking here about. Assertive rule क्या कहता है? Please put it in a box so that everything should be clear in your mind. Put it in a box. थोड़ा सफाई से काम कर लीजिए भाई. सुंदरीकरण कर दीजिए इसका. चलिए. Subject. This is the structure of simple present assertive rule. पॉजिटिव वाले जितने सेंटेंस होंगे उनमें ये रूल अप्लाई होगा. Subject plus V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस S और ES लगेगा प्लस ऑब्जेक्ट. सेंटेंस की फॉर्मेशन में क्या होता है? कोई भी हम सेंटेंस बनाते हैं सबसे पहले उसकी स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट आता है, देन वर्ब आता है, या हम कह लें हेल्पिंग वर्ब आता है, देन कम्स द मेन वर्ब, देन कम्स द ऑब्जेक्ट. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एनी सेंटेंस. सबसे पहले सब्जेक्ट आता है,
गिव मी सम एग्जांपल। इसका एक एग्जांपल बताइए असर्टिव का। जैसे ही प्लेस क्रिकेट, ओके, सो ही इज द सब्जेक्ट, प्लेस इज योर वर्ब के साथ क्या लगा है, फर्स्ट फॉर्म वर्ब के साथ एस या एस, एस लगा हुआ है, एंड क्रिकेट इज योर ऑब्जेक्ट, ओके, सो दिस इज योर सिंपल असर्टिव रूल। वन मोर थिंग, जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, लाइक we use for example, अब you के साथ हम क्या लिखेंगे, another example we take you, we don't write you writes a letter, हम लिखेंगे you write a story, we don't write writes, we write write, तो प्लूरल के साथ एस नहीं लगता, विद प्लूरल वी डोंट राइट एस, एस और एस, ठीक, बट सिंगुलर के साथ वी पुट एस, जैसे he plays cricket. Now we come to the another rule. Another rule is your, what is number second? We come to the negative rule. Let's see what is negative rule. Negative rule is subject. See the structure, children. Subject plus does not प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और एस प्लस ऑब्जेक्ट, ओके, सेंटेंस बनाइए। एग्जांपल, ही डज नॉट प्ले, एग्जांपल्स नोट डाउन करते जाइए, ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, ओके, बट प्लूरल के साथ डू आता है, जैसे दे do not play cricket। एक और एग्जांपल ले लीजिए नेगेटिव का, she does not write a story, क्योंकि यहाँ does es लगा हुआ है तो यहाँ writes नहीं लिखेंगे, हम write लिखेंगे, ओके। अब इसी का इंटरोगेटिव बनाते हैं। इंटरोगेटिव रूल, व्हाट इज इंटरोगेटिव रूल चिल्ड्रन? इंटरोगेटिव रूल में 10 पहले आ जाएगा, स्ट्रक्चर नोट डाउन करिए। डस प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस S और ES प्लस ऑब्जेक्ट। Does he play cricket? And one more thing, question mark. Does he play cricket? Next, प्लूरल में हम क्या करेंगे? Do they play cricket? This is your singular, okay? This is your singular subject, and this is plural. Do they play cricket? Clear? यहाँ तक clear है सबको? Okay. Now we come to the next. One more thing, children, I want to discuss here. वर्ब की पहले तीनों फॉर्म समझ लीजिए आप लोग। कुछ लोग वर्ब में गलती करते हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, सेकंड फॉर्म क्या होती है, थर्ड फॉर्म क्या होती है, तो वो मैं आप लोगों को जरा समझा दूं।
एक चार्ट बना लीजिए आप. ओके, यू ड्रॉ अ टेबल चिल्ड्रन प्लीज, so that you can be familiar with these verb form. What is first form, what is second form, ताकि आगे आपको दिक्कत ना आए जब मैं आपको सेंटेंस आपसे बनवाऊं. तो आपके माइंड में सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए कि किस के रिगार्डिंग मैम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पूछ रही है, किसके रिगार्डिंग सेकंड पूछ रही है. सो प्लीज ड्रॉ दिस टेबल. ओके, V1, V2 एंड V3 ये वर्ब की सारी फॉर्म्स है. क्या है हेल्पिंग वर्ब हमारे, क्या क्या है? इज, एम, आर, बी, हैज, have, do, does. Okay, what are the V2 form क्या हो गया? has का had हो गया, do does का did हो गया past में. next is am are का past में हो गया. clear? now what is V3 form? that is your had been. Okay, this you should note it down in your notebook. Fine, move करते हैं. next टेंस बहुत बड़ा है बच्चों, आज आपको थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, कंसंट्रेट होके बैठिए. नेक्स्ट इज योर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस. कोई काम प्रेजेंट में चल भी रहा है और लगातार हो रहा है कंटिन्यूटी के साथ. ओके, दैट इज योर प्रेजेंट कंटिन्यूअस. अब इसमें इसके रूल्स क्या है? फर्स्ट इज योर असर्टिव रूल. जितने भी पॉजिटिव सेंटेंस है उनका रूल क्या होता है? चलिए असर्टिव का रूल जानिए. बॉक्स बना लीजिए. put subject plus is am plus verb की first form plus ing plus object. so अब आप सेंटेंस बनाइए. I के साथ am यूज होता है, सिंगुलर के साथ is यूज होता है, प्लूरल के साथ are यूज होता है. इतना याद रखिएगा. ओके, नाउ वी विल टेक द एग्जांपल्स. बताइए. शी इज राइटिंग अ स्टोरी. फुल स्टॉप. नेक्स्ट अगला बताइए. इसी का प्लूरल क्या होगा? हो जाएगा दे आर writing a story. He is playing cricket. Fine. चलिए नेक्स्ट. दूसरा वाला कौन सा था? नेगेटिव रूल. नॉट लग जाएगा. What is negative rule? Subject, इसको भी बॉक्स में ले लीजिए भाई. Subject plus is am and we put not plus. Children, is this visible to you? थोड़ा बड़ा लिख दे इसको. not plus V1 plus ing plus object. Okay, example, she is not writing a story. Next is your interrogative. इंटरोगेटिव मतलब क्वेश्चन वाले.
इंटरोगेटिव का रूल क्या है? चलिए, इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है, दीज आर योर हेल्पिंग वर्ब, HV denote with HV and this is your main verb. Okay, V1 यहाँ पर main verb. So interrogative rule में क्या होगा? About interrogative rule, what happens in interrogative? This is the structure. First comes your helping verb, then your subject, then your main verb, and then plus ing plus object. Am I writing a story? Is he playing cricket? And we put a question mark at the end of the sentence. चलिए अगला देखिए क्या है after interrogative. Now children, one more thing I want to discuss. कहाँ आपको ये तो पता है कि present continuous use होता है tense में, पर क्या आपको ये पता है कि कहाँ नहीं use होता है? Where it is not used, no present continuous is used in some cases. जैसे लोग बहुत गलती करते हैं sentence formation में, grammatical error होता है, और एग्जाम्स में मार्क्स करते होंगे. So where no present continuous is used, now I am explaining where no present continuous. चलिए कौन से हैं वो एरियाज? फर्स्ट इज योर वर्ब्स ऑफ परसेप्शन. व्हाट इज परसेप्शन? कोई चीज जो हम महसूस करते हैं, जैसे सी देखना, हियर करना, स्मेल करना, दीज आर आवर सेंस ऑर्गन्स. या नोटिस करना, रिकॉग्नाइज करना. इन सबके केस में आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं यूज होता. और कौन से हमारे परसेप्शन वाले एरियाज? टच करना, फील करना. जैसे एग्जांपल लीजिए, बहुत से लोग लिखते हैं आई एम सीइंग अ हाउस, और आई विल राइट आई एम हियरिंग इट. आई एम हियरिंग इट. कुछ सेंटेंस में लिख रही हूँ, आप लोग मुझे बताइएगा ये ठीक है या नहीं. दिस इज आई एम हियरिंग इट. नेक्स्ट आई एम राइटिंग आई एम सीइंग अ हाउस. I am seeing a house. Next, I am tasting it. क्या ये सही है? According to grammar, are they right? These sentences. Tell me. You tell me. These all are wrong. क्या लिखेंगे हम इसको? I see a house. I see a house. जब परसेप्शन वाले वर्ब्स होते हैं तो वहां see हुआ, hear हुआ, taste हुआ, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं यूज होता है. I see a house. Next, I taste it. Next, I hear it. बहुत छोटी छोटी सी माइनर सी कॉन्सेप्ट है, पर बच्चे यही गलती करते हैं. नेक्स्ट, वर्ब ऑफ इमोशंस. वो वाले वर्ब जहां पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस नहीं यूज होता है. वर्ब्स ऑफ इमोशंस, भावनाएं. क्या है भावनाएं हमारी? लिव, love, wish, these all are our emotions. Refuse, in sentence के present, prefer. Children, note down all these terms. Prefer, desire. Okay, और क्या भावना है? Hope, hate, all these are emotions. यहाँ पर भी present continuous tense यूज नहीं होता. जैसे I am feeling it. I
आई एम फीलिंग इट। क्या ये सही है? दिस इज रॉन्ग। सही आंसर क्या होगा? आई फील इट। नाउ वर्ब्स ऑफ अपीयरेंस, कैसा दिख रहा है, तो वहां भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज नहीं होता। थर्ड, वर्ब्स ऑफ अपीयरेंस, वर्ब्स ऑफ अपीयरेंस में जैसे अपीयर होना, कैसा दिखना, इज योर वर्ब्स ऑफ अपीयरेंस। जैसे एग्जांपल है, ही इज अपीयरिंग स्मार्ट। क्या ये सही है? वो स्मार्ट दिखता है। हाउ डू वी राइट करेक्टली? आप लिखेंगे ही अपीयर्स स्मार्ट। ठीक, चलिए नेक्स्ट है फोर्थ है आपका वर्ब्स ऑफ पोजीशन, जहां पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस यूज नहीं होता। वर्ब्स ऑफ पोजीशन, पोजीशन मतलब व्हाट इज पोजीशन? ओन या कंसिस्ट, किसी की ओनरशिप दिखाई जाए, या कंसिस्ट हो, या बिलोंग टू हो, या पजेस हो। ओके, दिस इज वर्ब ऑफ पोजीशन। जैसे आई एम हैविंग अ बुक, एग्जांपल ले रही हूं मैं, आई एम हैविंग अ बुक, ये पोजीशन है, मेरे पास एक बुक है। क्या ये सही? दिस इज रॉन्ग। आई हैव अ बुक, तो या पोजीशन वाले सेंटेंसेस में जहां वर्ब पोजीशन हो वहां प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं आता। आई हैव अ बुक। नेक्स्ट, आई एम ओनिंग अ हाउस, ये भी पोजीशन है। I am owning a house. क्या ये सही है? This is also a wrong statement. So the correct statement is I own a house. या I own a house. ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या पढ़ रहे थे हम लोग अभी? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अब हमारा अगला जो टेंस है, प्रेजेंट में चल रहा है अभी, दैट इज योर present perfect tense. What is the structure of present perfect tense? What is the rule? इसको भी बॉक्स में डाल लीजिए भाई। इसका स्ट्रक्चर फॉर्मेशन नोट डाउन करिए। सब्जेक्ट प्लस हैज, हेल्पिंग वर्ब यूज होगा, प्लस हैव, देन कम्स द वर्ब की थर्ड फॉर्म, एंड देन कम्स द ऑब्जेक्ट। लेट्स सी, सिंगुलर के साथ हैज यूज होगा और प्लूरल के साथ हैव यूज होगा। ओके, लेट्स सी सम एग्जांपल्स। वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, जैसे शी हैज रिटन अ स्टोरी। वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, राइट रोट रिटन, हैज हेल्पिंग वर्ब आ गया, V3। ठीक, नाउ नेगेटिव रूल में सी में आ जाइए। ये तो हो गया आपका असर्टिव रूल। फर्स्ट इज योर असर्टिव रूल, सेकंड इज योर नेगेटिव रूल। नेगेटिव रूल में क्या होगा? स्ट्रक्चर नोट कर लीजिए इसका। सब्जेक्ट
plus has or have plus not plus V3 plus object. Okay, this is your structure. सेंटेंस बनाइए इससे. She has not written a story. चलिए इसी का इंटरोगेटिव बनाइए. हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा, जाके पहले रख दीजिए इसको सब्जेक्ट से. इंटरोगेटिव रूल में क्या होगा? हैज एंड हैव कम बिफोर द सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन कम्स द ऑब्जेक्ट. ओके, दिस इज योर स्ट्रक्चर. एग्जाम्पल ले लीजिए. Has she written the story? Has she written a story? No. चलिए आगे बढ़े, कंटिन्यू करते हैं आगे. Now we come to one more thing, children. I want to discuss here. You have to note down one thing. मैं एक सेंटेंस दे रही हूँ. सपोज अगर सेंटेंस हमारे ऐसे आते हैं जिसमें yesterday लगाओ या a few days ago लगाओ, इस टाइप के सेंटेंसेस होते हैं. Okay, I am giving you one example. Then present perfect tense is used. जैसे एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ, एक एग्जाम्पल आप देख लीजिए इसका. She जैसे she, I will write she has completed her book yesterday. Okay, now क्या ये सही है? This is your incorrect. करेक्ट वर्ड क्या होगा? जब हम she, इसका करेक्ट वर्ड होगा she completed her book yesterday. कहाँ एरर आपको मिल सकते हैं वो मैं समझा रही हूँ आपको. She completed her book yesterday. अगर yesterday लगा हुआ है तो फिर has नहीं लगाइए, has हटा दीजिए. ओके, yesterday का लगा हुआ है तो this is your right, this is your correct answer. एक और ले लेते हैं. We have met 5 days ago. तो जहां पर ऐसे सेंटेंस आते हैं जहां पे कुछ दिन पहले, डे बिफोर यस्टरडे, ये वर्ड्स आते हैं, उस सेंटेंस में कैसे आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं वो मैं बता रही हूँ. तो यहाँ हैव हटा देंगे. क्या आएगा? दिस इज योर इनकरेक्ट. ये इनकरेक्ट है आपका. ओके, यहाँ से आप हैव हटाएंगे और करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? वी मेट 5 days ago. ओके, ध्यान रखना. हैज हैव फिर वहां नहीं लगाएंगे. प्रेजेंट परफेक्ट अगर डेज एगो या आपको दिया हुआ है लास्ट ईयर, लास्ट मंथ एगो, शॉर्ट वाइल, जो भी इस टाइप के सेंटेंसेस हैं वहां हम हैज हैव नहीं लगाएंगे. Now we come to present perfect continuous. Next is a present perfect continuous tense. Present perfect continuous tense. चलिए इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए. assertive रूल में क्या फॉलो होगा? has have plus been
प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें फॉर और सिंस और लग जाता है लास्ट में, अगर टाइम पीरियड दिया है तो फॉर और सिंस भी लगता है इसमें। फॉर जैसे फॉर 5 डेज, फॉर 6 डेज, फॉर फ्यू मंथ्स, फॉर और सिंस भी इसमें ऐड होता है। यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक, ये इसका स्ट्रक्चर है। हैज आपको पता है सिंगुलर के साथ यूज होता है, हैव प्लूरल के साथ यूज होता है। ओके, जैसे एग्जांपल मैं ले रही हूँ असर्टिव सेंटेंस का, आई हैव बीन टीचिंग, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश for 8 years. Have आ गया, been आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट आ गया एंड फॉर टाइम पीरियड दिया for 8 years। अगर हम इसको इंटरोगेटिव में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो क्या आएगा? इंटरोगेटिव रूल, has have and is subject plus has have plus been plus v1 plus ing plus object. This is your structure. Sentence बनाइए, he has been writing a story सॉरी कुछ गड़बड़ है यहाँ सब्जेक्ट आएगा हैज देन बीन, पहले हैज आएगा, हैव आएगा, देन सब्जेक्ट, देन प्लस बीन। Has he been writing a story and question mark, ऑब्जेक्ट के बाद या ब्रैकेट में क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। ठीक, इंटरोगेटिव। नाउ वी कम टू, अब आप बहुत से बच्चे गलती करते हैं फॉर और सिंस लगाने में। इसकी भी मैं टेबल नोट करा दी हूँ कि फॉर कहाँ लगता है और सिंस कहाँ लगता है, ताकि आप लोग अपने सेंटेंसेस में ये मिस्टेक ना करें। Okay, so first you draw a table regarding for and since. Okay, so that it should be clear in your mind. What is the difference between for and since? बहुत गलती करते हैं बच्चे। For is for a particular duration of time, and since is used for a definite period of time. Okay, suppose मैं अब टेबल के थ्रू आप लोग को एक्सप्लेन कर रही हूँ। आई एम एक्सप्लेनिंग इट बाय दिस होल टेबल चल रहा है। Where your for is used and where your since is used. Okay? जैसे अगर हमको दिया हुआ है, कॉलम बना लीजिए आप लोग। जैसे अगर 2 days दिया हुआ है, 2 दिन, तो देन वी यूज फॉर। अगर 3 months दिया हुआ है, नोट डाउन कर लीजिए टेबल। 4 years दिया हुआ है, यानी ये ड्यूरेशन है टाइम पीरियड का। नेक्स्ट फॉर 5 decades, या दिया हुआ है 6 centuries। यानी इस सब में क्या दिया हुआ है, हम देख रहे हैं इस सब में ड्यूरेशन ऑफ टाइम दिया हुआ है। नाउ अगर सिंस है, जैसे सिंस 2005, सिंस मंडे, आई हैव बीन वर्किंग सिंस मंडे, अप्रैल
since 2015, since 6 p.m. I have been working since 6 p.m. तो स्पेसिफिक टाइम, डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम का दिया हुआ जी, नोट कर लो, डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम वहां से इस यूज करते हैं और फॉर्मेट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। ओके, नोट कर लिया सबने? नाउ वी कम टू द, एक बार इसको टेबल को आप देख लीजिए, प्रेजेंट टेंस पूरा खत्म हो गया। इस प्रेजेंट टेंस को अब आप एक ग्लांस में देख लीजिए, एक नजर देख लीजिए। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की मैं टेबल बना रही हूं, उस टेबल को नोट डाउन कर लीजिए, जिससे आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगी कि हमने क्या क्या पढ़ा अब तक प्रेजेंट टेंस के बारे में। थोड़ा टाइम टेकिंग है चिल्ड्रन, बट बी पेशेंट बिकॉज इट इज अ वेरी लेंथी टॉपिक। आप लोग सोच रहे होंगे कि एक क्लास में कवर हो जाएगा, इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू कवर इन वन क्लास। ओके, यू हैव टू बी पेशेंट। टेबल जैसे बना रही हूँ वैसे आप लोग बना लीजिए अपनी नोटबुक में, ताकि फर्दर रेफरेंस के लिए आपको इजी हो जाए। आपको फिजिबल रहेगी चीजें अगर आप नोट डाउन कर लेंगे with the help of table, and during examination time you can just go through it. Sorry. लाइन को नोट करिएगा बच्चों। Okay, your mind is not so perfect in drawing straight line। मैं क्या करें, मैथ के स्टूडेंट तो है नहीं। तो एक नजर प्रेजेंट टेंस एट क्लास देख लेते हैं। टेंस वी कम here to the simple present, present continuous, present perfect and present perfect continuous। Here I have explained to the table। फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर में क्या यूज करेंगे, I sing, प्लूरल में we sing। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या हो जाएगा, I am singing, प्लूरल में we are singing। प्रेजेंट परफेक्ट में I have sung, we have sung। फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हो जाएगा सिंगुलर में I have been singing, प्लूरल we have been singing। सेकंड पर्सन में आ जाइए, you sing, सिंपल प्रेजेंट में you sing, प्लूरल में भी। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में you are singing। प्रेजेंट परफेक्ट में you have sung, वर्ब की थर्ड फॉर्म you have sung, प्लूरल में। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में फर्स्ट पर्सन में आएगा I have been singing सिंगुलर में, और सेकंड पर्सन में you have been singing, फिर प्लूरल में आएगा we have been singing, you have been singing। ऐसे थर्ड पर्सन में आपके सारे आ जाएंगे। सिंपल प्रेजेंट में they sing, he is singing continuous में, he has sung प्रेजेंट परफेक्ट में, he has been singing आपका आएगा प्रेजेंट परफेक्ट continuous में। Okay, so now here is we are done with present tense। Now we come to the past tense। Hope you have noted down this table, children। The action that has taken place in the past comes under the past tense। Okay। पास्ट टेंस को भी 4 में डिवाइड करेंगे हम लोग। सिंपल पास्ट, then past continuous, then past perfect and past perfect continuous। continuous tense। Okay, this is all about past tense। Now we come to the structure of the simple present tense। इसमें भी आपके 4 तरह के हैं, assertive, then your negative, interrogative, okay, and your
Sentence negative, assertive. Now we come to the examples. Here we see, children. First we see what is the structure of the rule of simple past tense. Put it in a box. Subject plus verb की second form. यही एक ऐसा टेंस है जिसमें verb की second form आती है. Okay. Then object. Then is your full stop. So assertive sentence में एक sentence बनाइए. She write का second form क्या हो जाएगा? Wrote. She wrote a story. Done. Negative. You did not console me. You did not console me. अब एक चीज और, पास्ट में did के साथ verb की first form आती है. When we use did, we use the first form of the verb. Console नहीं आएगा, console आएगा. Interrogative में helping verb पहले आ जाएगा. Did she write a story? Example बता रही हूँ मैं. Did she write a story? This is your interrogative sentence. And what is negative हो गया? चलिए हो गया आपके सारे. Now past continuous में आ जाइए. Past continuous में भी आपके रूल सारे लगेंगे. So what is the main structure of this past continuous? Subject plus was verb plus verb की first form plus ing plus object. Full stop. Okay. चलिए इसमें भी आपके चार आएंगे. Assertive, negative, interrogative and interrogative negative sentences. Negative. चलिए एक एक सबका एग्जांपल्स देख लेते हैं. First we see she was. assertive में लिख देते हैं she was writing a letter. Past continuous है, verb के साथ ing was लगा हुआ है, writing a letter, or we write a story, whatever it is, the object. Next, she was not writing a story. Next, was she writing a story? Was she not writing a story? Done. Okay. Now we come to the past perfect tense. What is the structure of past perfect tense, children? Subject plus had plus verb की third form plus object. Subject plus had plus verb की third form plus object. This is your all about the structure. Now 4 sentences are included in it. Assertive, negative, interrogative, and interrogative negative. Okay, take one example of this. She had written, wrote, written verb की third form, a story. Okay, negative. He did not. एक चीज और यहाँ did आ गया तो he did not went to school नहीं लिखेंगे, verb की third form नहीं लिखेंगे, verb की first form आएगी. He did not go to school. This will be your correct answer.
ओके, इंटरोगेटिव में डिड ही गो टू स्कूल, and did he not go to school? This is all about. Now we come to the. This is your past perfect. Now we come to the past. One more thing I want to tell children. That suppose if the one action is completed before two sentences are given in a particular sentence, and one action is completed before the other. जैसे कि here I am discussing few examples. जैसे the aeroplane. I will take your example. Sorry. Okay, I am taking here past perfect में examples हैं कुछ, इन्हें आप देख लीजिए. जैसे suppose if two action took place in the past, if two actions took place in the past, अगर दो एक्शन कोई जो पास्ट में होते हैं तब क्या होता है? तो जो फर्स्ट पुराना वाला एक्शन है, the action and two action, that is number action 1 and other is action number 2. ठीक, तो जो ओल्डर वाला एक्शन है चिल्ड्रन, ओल्डर वाला एक्शन है उसको हम लिखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में, और जो नया वाला है उसको हम लिखेंगे सिंपल पास्ट में. ये कुछ रूल्स हैं, ये आप थोड़ा याद रखिएगा. जैसे I will explain with examples children. अगर दो एक्शन पास्ट में हो रहे हैं तो जो पुराना वाला है वो किस में जाएगा? आपका पास्ट परफेक्ट में, और जो नया वाला है वो आपका बदलेगा सिंपल पास्ट में, और पुराना वाला पास्ट परफेक्ट में. जैसे एग्जांपल मैं ले रही हूँ, ये आपका भी पास्ट टेंस चल रहा है चिल्ड्रन. ओके, इसी के अंदर जो पास्ट परफेक्ट टेंस है उसका ही पार्ट चल रहा है. कहाँ कहाँ यूज होता है. जैसे एग्जांपल मैं ले रही हूँ, द एरोप्लेन had taken off. Had taken off. The aeroplane had taken off before we reached the airport. Okay, now we reached at the airport. Sorry, at the airport. अब हमारे पहुंचने से पहले एरोप्लेन उड़ चुका था, जा चुका था. तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो had taken off है, had taken off. It is what? It is past perfect. ये past perfect है, ठीक. और बाद वाला we reached at the airport, ये कैसा है? सिंपल पास्ट है. ये बाद में एक्शन, नया वाला एक्शन हुआ, ये पुराना वाला था. दिस इज ओल्डर एक्शन. तो जब हमारे दो एक्शन आते हैं पास्ट में और ये दिस इज न्यूअर वन, तो पास्ट वाले को हम किस में कन्वर्ट करते हैं? प्रेजेंट, सॉरी पास्ट परफेक्ट में, और नए वाले को सिंपल पास्ट में कन्वर्ट करते हैं. ये नया. नाउ वी कम टू द चिल्ड्रन पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. पास्ट टेंस में चल रहा है. इसका क्या रूल है आपका? सब्जेक्ट प्लस what had plus been plus verb की first form plus ing plus object plus full stop लगा दीजिए. This is your main structure for
past perfect continuous. Okay. Now, had been, sorry. This is had been. Now take it with examples. What are the sentences we take here? Assertive, second negative, third we take interrogative. Next is for your interrogative negative. Take one example, children, quick. We'll take a quick recap. She had been writing a story. Assertive sentence हो गया. She had been writing a story. Now next is she had not been writing a story. Next. अगला होगा हमारा had she been writing a story? Had she not been writing a story? This is all about your past tense. Now we come to the future tense. Future tense. This is your last tense, children. And we are approaching toward the end of tenses today. Future tense. Okay, let's start with the future tense. Future tense, it is also divided. यानी according to the modern English तो मैंने बताया ही आपको future को consider नहीं किया जाता है, but curriculum में included है तो पढ़ना ही पड़ेगा. Simple future or future indefinite. Future continuous. Next is your future perfect. Future perfect continuous. Okay. So simple future में क्या है? We use will or shall plus verb की first form. This is your structure. That is your subject. Will, shall verb की first form. और एक चीज अब तो मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहूंगी बच्चों, will कहाँ यूज होता है और shall कहाँ यूज होता है. Will when we are talking about with definite, that is the thing which is definite and with full determination, यानी 100%. जैसे I और we के साथ will use होता है. That means we are with full determination. I will do it. We will do it. Okay, I and we use will. And next is your shall. Shall कब यूज होता है? नॉर्मल केस में, मतलब डिटरमिनेशन नहीं है यहाँ पर. I और we में यूज होगा, but it is used in the normal sense, not determination. Will is with used with determination. अब एक चीज और, will जो है वो हमारा that is also used with you, she, he, it, okay, and they के साथ भी यूज होता है. फाइन, दे के साथ भी आपका यूज होता है. और शाल जो है हमारा वो अगर शाल हमारा यू के साथ, then he, she, it and your what, they, राम, श्याम, घनश्याम जो भी आपके हैं
ओके, सो इट इज कंपल्शन है यहाँ पर भाई, कंपल्शन, ये कंपल्शन है तब शैल यूज होता है, ध्यान रखिएगा, दिस इज कंपल्शन, देन इट इज यूज, वी यूज शैल, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ वी कम टू द फ्यूचर पर आ जाइए। फ्यूचर की जैसे बता दे रही हूं मैं, सारे अब इनके चारे असर्टिव, दिस इज ऑल अबाउट योर रूल। नाउ वी कम टू द, चलिए सिंपल फ्यूचर के देख लेते हैं। चार हो गए इसके आपके, असर्टिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव एंड इंटरोगेटिव नेगेटिव। The students, सब्जेक्ट इसमें असर्टिव में क्या आएगा, एग्जांपल मैं ले रही हूँ, she will write a story, will और shall आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, write a story। चलिए नेक्स्ट, she will not write a story, write a story। next, will she write a story, story। next, will she not write a story, this is question mark, sorry, will she not write a story, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हो रही है और will और shall यूज हो रहा है, will she not write a story, ये भी क्वेश्चन ही पूछ रहा है, इंटरोगेटिव भी है, नेगेटिव है। चलिए फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का जो स्ट्रक्चर है वो आपका है, ऐसे बहुत लेंथी टॉपिक है स्टूडेंट्स, सो डोंट फील बोर्डम, आपको एक्टिव रहना पड़ेगा क्लास में भाई। चलिए फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में आपका आएगा विल और शैल, देन व्हाट वी यूज, बी प्लस वर्ब ing plus object, okay, this is our structure। जैसे he will be, एग्जाम्पल इसका क्या होगा, he will be going to Delhi, ठीक। अब ऐसे आप सारे ऐसे कर लीजिएगा, assertive, negative और सारे interrogative and this all। Now we come to the next, future perfect। What is the structure of future perfect, children? Just note down in a box। future perfect का आपका क्या होगा, future perfect में आपका आएगा will और shall helping verb, then what come have, will और shall क्योंकि future है, perfect भी है तो has have भी आएगा, verb की perfect है तो verb की third form आएगी, and also your object will also come, okay। example, I, इसी में example लिख लीजिए आप, I will have become, have हो गया, become, became, become, verb की third form, I will have become a doctor by 2023, ठीक। नेक्स्ट फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आपका वी आल्सो ऐड चिल्ड्रन सब्जेक्ट, please do add children subject also, so the structure should be completed, okay। future perfect continuous, what it comes, subject plus will or shall
plus have plus been plus verb की first form ing plus object ing or object, and we also write one more thing children, that is for or since is also coming. This is your structure about future perfect continuous tense. Okay, now when we change into affirmative, negative, interrogative and interrogative negative, चलिए एक एक सेंटेंस इनका देख लेते हैं. She will have been writing this. Suppose she will have been writing a story. Okay. Next, she will not have been writing a story. Next, will she have been writing a story? And next is, will she have not been? Will she have not been writing a story? This is all about your children, the whole tenses. Now, one more thing, children, I want to discuss the usage of since and for. This is the last pointer which I want to remind you and recall in your memory. Since and for. Okay. What are the sentences which are wrong in usage and what are the correct sentences in since and for? Okay. For is used in perfect and perfect continuous. When the tense is perfect or perfect continuous, then only for is used. जैसे I am explaining, it is raining. Example I am explaining. बताइए आप मुझे सही है कि नहीं? It is raining for 2 hours. कुछ कंसेप्ट्स हैं जो शायद बुक में आपको नहीं मिलेंगे, जो मैं ये समझा दे रही हूँ, क्योंकि बुक में तो आपको सिर्फ रोज पढ़ा दिए जाएंगे, रोज के अकॉर्डिंग आपको एक्सरसाइज सॉल्व करनी होगी. बट कुछ एक्सेप्शंस हैं जो आपको मेमोरी में रखने, वरना ग्रामर एरर आएगा. इट इज रेनिंग फॉर 2 hours. सपोज ये सेंटेंस है, ठीक, फॉर 2 hours. क्या ये सही है? क्या ये सही है? इट इज रेनिंग सिंस और फॉर का कहाँ यूज होगा? ठीक, गलत. The correct answer would be it has rained for 2 hours. जब टाइम पीरियड दिया हो, फॉर और सिंस दिया हो, वहां परफेक्ट या परफेक्ट कंटीन्यूअस यूज होता है. अब हैज रेन्ड क्या हो गया? परफेक्ट हो गया ना, फॉर 2 hours. नेक्स्ट, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे अगर हमको परफेक्ट कंटीन्यूअस में करना है तो इट हैज बीन रेनिंग for 2 hours. For 2 hours. ठीक है, सही है, क्लियर. चलिए अब सेंस को देख लीजिए. सेंस हमारा कहाँ यूज होता है? ये तो बात हो गई आपके फॉर की. चलिए अब सेंस को भी देख लेते हैं भाई. सेंस कहाँ यूज हो रहा है? लेट्स सी सेंस आल्सो. सेंस हमारा यूज होता है पास्ट टेंस के लिए, ठीक, पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम, राइट. जैसे आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश
English since what? Since I came to Delhi. ठीक, मैं जब से पढ़ा रही हूँ, जब से मैं दिल्ली आई हूँ, ओके। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सिंस के बाद हमारा क्या यूज हुआ? दिस इज योर सिंपल पास्ट। तो एक और चीज नोट कर लीजिए बच्चों कि अगर one more thing I want to note it down to tell you students, जैसे अगर सिंस है तो वो सिंपल पास्ट में यूज होगा और उससे पहले वाली चीज हमारी परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में होगी, जैसे ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। ठीक, जैसे अगर हम ये यूज करेंगे सिंस, अब सिंस वाले कौन से सेंटेंस होते हैं? मान लीजिए सिंस ही केम हियर, जब वो यहाँ आया। ठीक, सिंस आई गॉट मैरिड, सिंस आई गॉट मैरिड, since we left for Pune, since we did it, देख रहे हैं आप सब में पास्ट टेंस आ रहा है since में, since we did it, clear? This should be clear to you, children. One more thing is there. I am missing one point, children. Let me clear it, whether it is given or not. Okay, ठीक है. Since childhood, ये भी लिख सकते हैं आप. ठीक. So this is all about your tenses, children. So, is everything clear to you, children? सब कुछ समझ आ गया? क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलिए नेक्स्ट क्लास में हम टेंसेस के रिगार्डिंग हम सारी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। आई विल solve all the exercise regarding all the tenses, 12 tenses in my next class. Okay, so thank you so much children. शेयर करिएगा children। इस प्लेटफॉर्म पे आने का एक मेन जो एम था, जो मेन सिनेरियो था, दैट इज कि ये जो वीडियो है हमारी, जो दूर दराज गांव में जो बच्चे हैं, जो मोहल्ले में गलियों में रहते हैं, जो पेड कोर्सेज भी नहीं दे सकते, जो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग इतने नहीं हैं, हम ये चाहते हैं कि उन तक ये वीडियोस पहुंचे। और ये काम मैं अकेले नहीं कर सकती, ये काम आपके बिना पॉसिबल नहीं है। हर उस बच्चे तक ये वीडियो जानी चाहिए जो पढ़ाई में आगे आना चाहता है, कुछ लाइफ में अचीव करना चाहता है, जो उसकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो पेड कोर्सेज ले या मेट्रोपॉलिटन सिटी आके अपनी पढ़ाई करे। तो प्लीज स्टूडेंट्स इस वीडियो को शेयर करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, प्रमोट करिएगा इस वीडियो को आगे से आगे। अपने जितने भी जानने वाले बच्चे हैं, जो भी आपके गांव में, गली में, मोहल्ले, शहर में, उन तक ये पहुंचाइए, ताकि हर बच्चे को वो अपॉर्चुनिटी मिले कि उनका जो बेस, जो एक डर बैठा हुआ है बच्चों में, बेसिकली हमारे पिछड़े इलाकों में इंग्लिश को लेके एक बहुत मिसकंसेप्शन है, या कुछ भी मान लीजिए बच्चों को डर है कि इंग्लिश इज अ वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट, बट I will try my level best to clear all your doubt from foundation, from basic till advanced level। इसीलिए मेरे चैनल पर मेरी जो भी वीडियोस आपको जाएंगी सब बाइलिंगुअल है। मैं पूरा हिंदी में एक एक कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझाऊंगी, ताकि किसी भी बच्चे को इंग्लिश में कम से कम कोई दिक्कत ना हो। ओके, सो थैंक यू सो मच। So do like, share and subscribe our channel. Thank you.